Can you tell me which are the four factors of production? Land, labor, Land, capital, labor, and capital, entrepreneurship. entrepreneurship. You all know this much, that land, labor, capital, and entrepreneurship are four factors of production. Can you tell me, out of these four factors of production, which one is the active factor of production? Assessment, any assessment? Which is the active factor of production? Your voice हम is coming. टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं मैम, हम टेक्नोलॉजी को बोल सकते हैं. नहीं. Anyone else? यार Ma'am, please repeat the question. You people only said that four factors of production are land, labor, capital, and entrepreneurship. Which out of these is active factor of production? Labor, ma'am. बताइए. Ma'am, labor. Yes. Yes. That is the active factor of production. Why is this an active factor of production? Because that is responsible for driving मैम the other एक्टिव तो factors. मैम कैपिटल नहीं, active इसलिए हुआ क्योंकि वो Yes, ma'am. responsible It होता depends है. upon the labor. उस हिसाब से तो मैम हम लोग लैंड नहीं, active land is not responsible for driving the labor. Can land भी अगर land बहुत अच्छा है तुम्हारे पास तो क्या तुम लेबर को वर्क करा सकते हो उससे? नो मैम नहीं ना? तो इसीलिए लेबर इज नोन एज द एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ लेबर का मतलब लेबर नहीं है, यहाँ लेबर का मतलब क्या है? वर्कफोर्स है, पूरा वर्कफोर्स. जैसे आई एम अ लेबर फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी एम्प्लॉय हाँ एम्प्लॉय जितना भी वहाँ का वर्कफोर्स वहाँ करते बोलो. मैम उस हिसाब से तो मैम हम लोग कैपिटल को ना एक्टिव बोल सकते हैं मैम, क्योंकि कैपिटल से हम लोग लैंड भी खरीद सकते हैं, लेबर को भी ला सकते हैं, और कैपिटल की वजह से हम इंटरप्रेनर भी बन सकते हैं आगे फ्यूचर में. तुम्हारे मेन पास तो ये होना देखो, चाहिए. तुम्हारे पास 2 लाख रुपए है, ठीक है? 2 लाख रुपए है तुम्हारे पास. उस 2 लाख रुपए का मान लो तुम्हारे पास 2 लाख रुपए है और किसी एक आदमी के पास, अनिशा के पास भी 2 लाख रुपए है. ये तुम्हारी अपनी पर्टिकुलर स्किल्स है ना कि तुम उस पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करते हो, कि तुम मार्केट में लगाते हो, कि तुम एफडी में लगाते हो, कि तुम आरडी करते हो, मार्केट फोर्सेस में लगाते हो, कि वो पैसा कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है. ये तुम्हारी अपनी स्किल है. ये क्यों कहा जाता है कि मशीन इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्लान बिहाइंड मशीन इज इम्पोर्टेंट. यानी दिस इज सेड कि अगर दो ऑर्गेनाइजेशन है, सी I have given you the HR introduction even when I started payroll classes, but this is a fresh class for HR workshop, so I thought कि after class introduction से start करना चाहिए. Why we call HR as the active factor of production? Because HR यानी human resources is the factor of production which is responsible for driving the other factors of production more efficient. Okay. If we compare two different organizations, organization A and organization B, if both of them have the same factors of production, say land, labor, land, capital, entrepreneurship is common to both these organizations, organization A and organization B, the one organization which has more skilled work power will be responsible for providing more productivity than the other organization. आप इसको ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे समझिए, आप BBA 1A में बैठते हैं, तो BBA second sem, you sit in 1A. आवाज में बहुत ब्रेक हो रही है. Wait, I'll connect with my hotspot. Okay, wait, I'll connect with her hotspot. Wait. मैम Wait, एक्सक्यूज मी मैम, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है. okay, okay, wait. Okay, is it better now? यस मैम. Yes. Please take the screenshot of it. I gave you an example
कि अगर कोई दो ऑर्गेनाइजेशन है, if there is organization A and another organization B, given the same factors of production, which is land, capital, and entrepreneurship, two organizations will have different productivity, or the outcome of work will be different for two organizations if the manpower is different. You have the same technology, but if the man running that technology, man working on that technology is more skilled for you, you will be delivering higher productivity. जैसे इसको एक एग्जांपल से समझो, आप लोग 1A में बैठते हैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1C में बीकॉम का क्लास होता है सुबह में। देखो, तुम्हारी क्लास में भी सेम एसी है, तुम्हारी क्लास में भी सेम फैन है, तुम्हारी क्लास में भी बेंचेस की क्वालिटी सेम है, आप भी वही फीस दे के आए हैं। The same teacher will deliver a lecture in your class. The same teacher will deliver a lecture in your class and the same teacher will deliver a lecture in BCom 4. But क्या दोनों क्लास सेम होगा? टीचर जब कंपैरिजन करेंगे तो शायद कुछ पैरामीटर्स पे आपको अच्छा बोले, कुछ पैरामीटर्स पे उनको अच्छा बोले। Yes, ma'am. Given Yes, the ma'am. same factors, ये सारे factors same हैं, but still what makes one class different from another class will be you, the students. एक क्लास के स्टूडेंट ज्यादा कुछ क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन है, स्टूडेंट। एक क्लास के स्टूडेंट ज्यादा डिसिप्लिन होंगे या इनडिसिप्लिन होंगे, ज्यादा रेगुलर होंगे या इररेगुलर होंगे, ज्यादा रिस्पॉन्सिव होंगे या डल होंगे। You understand this? जब दो Yes, ma'am. क्लास का डिफरेंस सेम पैरामीटर पे सिर्फ स्टूडेंट्स ने डिफर कर दिया, कैन यू इमेजिन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज रनिंग विद 2 lakh 2.5 lakh people, and if they are skilled and not skilled, what impact will have on its total productivity? यस मैम, जिसके पास इसकी नॉलेज अच्छा होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, वहाँ पे मैम प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। और वही ज्यादा जिसका होगी? मैम यस मैम Yes, एक्सपीरियंस ma'am. नहीं होगा, सारे कैपिटल सेम भी होंगे, फिर भी अगर लेबर डिफरेंट हो तो फर्क हो जाएगा। फर्क हो जाएगा। Serious This बात is है। where human resource management comes into role, and this is why human resource is so important for organization these days. Let me acha, we are talking so much about productivity. Can any one of you define productivity? What do you understand by productivity? You must have come to this word several times. Somebody please define productivity. Ma'am, it is the efficiency of production of goods or services. Okay. Anyone else? Bharat, can you say something? हम जितने कम रिसोर्स में ज्यादा बेनिफिट देना उसको तो Anyone else? You want to give it a try? Ma'am, labor by output. Output by labor. Yes, ma'am. मैम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की क्षमता मैम। Yes, output by labor. See, Pratyay, you said the same Labor thing which से Mahi कितना? said. Okay, that efficiency. तुमने हिंदी में बोला, उसने इंग्लिश में बोला, बस यही फर्क है. Both of you said the same thing, right? But Yes, if you ma'am. Yes, ma'am. technically define productivity is the total output of work given by the total number of people. अब आप सोचिए कि ये एक इक्वेशन है, न्यूमरेटर पे कुछ है और डिनोमिनेटर पे कुछ है। छोटा सा एग्जांपल लेकर के इसको समझो। अगर नीचे टोटल मैनपावर 10 है किसी ऑर्गेनाइजेशन का और प्रोडक्टिविटी यानी कि बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हैं, सेम है वो, अगर उसको कांस्टेंट रखो, एक ऑर्गेनाइजेशन का लेबर अनस्किल्ड रखो और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का लेबर स्किल्ड रखो, you think productivity will be same for both these organizations? नो मैम, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द No, ma'am. लेबर। जिसका स्किल ज्यादा होगा उसका प्रोडक्ट अगर आप अच्छे Productivity मैनपावर को रखेंगे तो वो ज्यादा वर्क ज्यादा देगा, होगा मैम। आउटपुट ज्यादा देगा। Yes, ma'am. This is Yes, how and this is Yes, ma'am. why you understand this by this equation. This is why human resource management of an organization is utmost important for the organization to flourish. An organization works with, an organization which is as big as, for example, you take mining company.
Coal India Limited is one Indian coal mining company. This is not just a big company in India. This is the biggest organization in the entire world. पूरे दुनिया में सबसे बड़ी माइनिंग की कंपनी कोल इंडिया है और इंडिया में 80% प्रोडक्शन कोल इंडिया के ही कारण होती है. And people who work in Coal India are extremely happy because when you will get an insight of how they treat their people, the kind of bonus, the every facility that they give, will be just blown away by how that organization keeps its employees happy. And this is the key. This is so instrumental in today's time. Now, HR का जो पैटर्न था ये हमेशा से ऐसा नहीं था. HR was not always this important to an organization. when we say that something or an era जहाँ से HR started becoming important to the organization was 1960s. पहले HR was only one person who would negotiate salary on behalf of his employer, and he was one person who would be required to maintain the personal records and paperwork. But now things have changed dramatically in last one decade. But its inception dates back to the time of 1960s when there were many human resource and many behavioral experiments going on. आपने वो भी पढ़ा है? वो भी पढ़े? Yes, ma'am. मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ रहे हैं? यस मैं आप ही पढ़ाई थी. Yes, ma'am. आप ही मोटिवेशन आप पढ़ाएं पढ़ाए. आप ये सोचिए कि जब हम आपको हमेशा बोले हैं कि मैनेजमेंट पढ़ने का तरीका क्या है कि आप जब कभी भी कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, पे अटेंशन टू इट्स डेट, किस एरा की वो थ्योरी है, तब आपको पता चलेगा कि क्या रेलेवेंस था. जैसे कि कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम इज अ न्यू नॉर्मल, एक नॉर्मल सी चीज है. तो जैसे हमारे आगे का जो जनरेशन है वो तो वर्क फ्रॉम होम को एक नॉर्मल चीज समझेगा, वो बेनिफिट थोड़ी कंसिडर करेगा उसको. लेकिन वर्क फ्रॉम होम was never this normal before the pandemic. This was luxury. This was a benefit which was provided to only a chosen few people of the organization, and especially on request. For example, to somebody who has met an accident, who could not come to office but can work in his bed from his home. Work from home was given to a new mother who could not leave her child, but she was fit for working. She could work from home. Work from home was given to people of Indian origin who could go to America. तो यहाँ की जैसा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है वहाँ पर. वहाँ पर पेरोल में एक बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट का खर्च आता है जब आप ट्रांसपोर्ट लेते हैं. तो कंपनीज क्या करती थी, इंडियन पेरोल पे या अमेरिकन पेरोल पे भी यहाँ से अगर भेजते तो वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम दे देती थी ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्च उसको बच जाए. तो वर्क फ्रॉम होम वाज गिवन इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक मैनर. ऐसे नहीं था कि डिक्लेयर कर दिया 2021 और 2022 तक वर्क फ्रॉम होम. So this is how things change with era, with time in human resource management. And this is how we change our perception, how we look at human resource. You getting my point? So Yes. 1960s में, I don't know if you have studied it or not, but जैसे आप हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, एल्टन मायो का एक्सपेरिमेंट्स हैं. Yes. ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं. मोटिवेशन की थ्योरी है. मोटिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट हुआ कि भाई आप अपनी वर्कफोर्स को हैप्पी रखिए, कीप देम मोटिवेटेड फॉर हायर प्रोडक्टिविटी. और जनरली ये सब उसी डेकेड में हुआ है, 19 at the end of 1950 and inception of 1960s, and the entire 1960s was dedicated to the upliftment of human resources. ठीक है? Now you know about the industrial policy. इंडस्ट्रियल पॉलिसी जानते हैं आप? अभी नहीं जानते हैं. No, मेरे को ma'am. पढ़ना है. पढ़ना है. Yes, ma'am. यस मैम, इसी से मैं Yes, पढ़ना है. ma'am. 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप जानते हैं. मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट. एलपीजी नहीं जानते हैं आप लोग? ग्लोबलाइजेशन वगैरह. यस मैम. बताइए क्या होता है. प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन उस समय आया था, जुलाई 1991.
1991. And what do you mean by these three words? If anyone can elaborate. Thoda sa. I just want to know if you know anything about it or not. Ma'am, globalization means making the all world at one point, means interdependence of worlds, and liberalization means restriction जो भी लगे हुए थे गवर्नमेंट्स के वो हटा दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं बहुत. एंड प्राइवेटाइजेशन में जो भी पब्लिक सेक्टर के प्रॉपर्टीज हैं वो अब प्राइवेट सेक्टर में अब आ रहे हैं, उसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन. Out of many industrial policies, one industrial policy which is very important to understand the paradigm change of how human resources changed is the industrial policy of 1991, which was the era when from a shut economy or from a closed economy, we became an open economy. What do you mean by shut economy? Imports and exports were not allowed. Whatever we produced, we consumed it inside inside our country. हम जो बनाते थे सामान वो हम इतनी बड़ी आबादी थी कि हम एक्सपोर्ट के बारे में नहीं सोचते थे, वो हम खुद कंज्यूम करते थे. इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वैसा काम नहीं था. गवर्नमेंट सेक्टर का thoroughly बोलबाला था. The government sector was predominantly working in the economy, and for anyone who wanted to start trade and business had to get the clearing of licenses by very stringent regulations of the government. समझ में आई बात? जैसे कि पूरी जगह गवर्नमेंट सेक्टर का बोलबाला है. अगर हमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमको लाइसेंस का क्लियरिंग लेना पड़ेगा, और ये इतना टफ होता था कि sometimes it would require 10 to 12 authorities to give you a clear licensing authority to start a business. Even after you started a business, you know, this act, this very thing, that licensing system was so tough, this would demotivate the traders. उसको डिमोटिवेट करेगा Yes, ना. ma'am. अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट ना करे, वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन, वहाँ की पॉलिसी आपको सपोर्ट ना करे, you will have a tough time doing that business. Maybe you will be not willing to do that business. तो लाइसेंसिंग सिस्टम क्लियर करने के बाद भी there were many things, जैसे आप फेरा फेमा इसी टाइम पे पढ़ेंगे. MRTP, which is Monopolies Restricted Trade Practices, कैसे ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया जाता था वो पढ़ेंगे. अगर आप अच्छा कर रहे हैं and you want to expand your production capacity, you could not without the permission of government. In total, चीजें बहुत टफ थी. इकोनॉमी में ट्रेड करना आसान नहीं था. What led to or what triggered the LPG thing, this kind of economic policy? Who was the prime minister at this time? Right? अटल बिहारी वाजपेयी. And who was finance minister? What? Who was the finance minister? उस समय finance कौन हैंडल कर रहे थे? ये पॉलिसी किनके अंडर आई? The prime minister was PV Narasimha Rao and finance minister was मनमोहन सिंह. Okay? तब हमारा फॉरेन रिजर्व बचा नहीं. Then सिर्फ 1 week का फॉरेन रिजर्व was there, and we had huge amount of loan. We had taken huge amount of loan from IMF. और एक और इंटरनेशनल इवेंट हुआ जिसने ट्रिगर किया कि हम LPG पे ध्यान दें, यानी हमारी इकोनॉमी ऐसी रही तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. What was that event? That event was the breaking of Soviet संघ, Soviet Union. आपको ये मालूम है कि USSR टूट के 15 कंट्रीज में डिवाइड हुआ. The biggest of all those countries is Russia. ठीक है, तो why is this very important when we study LPG? क्योंकि इंडिया भी सोशलिस्ट पैटर्न पे बिलीव करता था. सोशलिस्ट पैटर्न का क्या मतलब होता है? सोशल इकोनॉमी कितने टाइप की होती है?
3 तरह की। बताइए क्या क्या होती है? Socialistic, capitalistic, and mixed economy. सोशलिस्ट। हाँ, नेक्स्ट वन भी से पूछा। Capitalistic and mixed economy. देखो बेसिकली इकोनॉमी दो तरीके की होती है, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। जो कंट्री दोनों को अलाउ करता है फॉलो करने, जैसे इंडिया, दैट इज नोन एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। Mixed economy. मिक्स्ड इकोनॉमी अपने आप में एक टाइप नहीं होता है। जो कंट्री अलाउ करता है कि दोनों इकोनॉमी फॉलो करना हम अलाउ कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। सो इनिशियली आई मीन देन we were a firm believer of socialist economy, and so was USSR. USSR 1991 में ड्यू टू सर्टेन रीजंस, आप इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ेंगे तब उसमें पढ़िएगा कि टूटने का बहुत सारा कारण था। तब इंडिया को भी समझ में आया कि अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी से अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट नहीं करते हैं तो यूएसएसआर जब इतनी बड़ी और इतना पावरफुल होने के बावजूद नहीं टिक पाया, तो हम भी नहीं टिक पाएंगे। यू अंडरस्टैंड दिस? देखिए हम एचआरएम पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको इसलिए देना जरूरी है ताकि आप समझें कि उस इंसिडेंट के बाद, यानी इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद काफी कुछ चेंज हो गया एचआर पैटर्न में। तो जब एलपीजी के बाद हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, ग्लोबलाइज किया और प्राइवेटाइज किया, तब हमारा पैटर्न ऑफ बिजनेस चेंज हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? पैटर्न ऑफ बिजनेस कैसे चेंज हुआ और ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? एलपीजी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद पैटर्न चेंज हुआ। और ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? I think the whole world at one मैम point फॉरेन means अलग-अलग फॉरेन कंट्रीज के जो मार्केट कंपनी है आपस में इंटीग्रेट होते हैं। मैम यहाँ पे जब बाउंड्री ग्लोबलाइजेशन होगा तो उसके बाद बाहर के फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में आकर के ट्रेड कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा सकती है और इंडिया के बाहर जाकर बिजनेस कर सकता है इंडियन कंपनीज भी। तो यही है, लेकिन एक और क्वेश्चन का आंसर करो कि जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो क्या सिर्फ इकोनॉमी इंटीग्रेट करती है या उसके साथ कुछ और भी इंटीग्रेशन होता है? मैम और सब फिर ग्लोबलाइजेशन में ओपन बन जाती है। किस हम चीज का इंटीग्रेशन होता है? मैम पॉपुलेशन का, कल्चर का। वेरी गुड, हु सेड दिस? मैम माही। वेरी गुड, दिस वाज द आंसर आई वाज सीकिंग फॉर। कि कल्चरल चेंज भी बहुत बड़ा होता है ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से। ठीक है, कल्चरल चेंज पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके बिजनेस में भी रिफ्लेक्ट करता है। आपने ये देखा है क्या इंडियन कंपनीज में हमारे यहाँ ये सिस्टम था हैलोवीन सेलिब्रेट करने का? नो मैम नो मैम। लेकिन आप देखिएगा कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जब अमेरिका में हैलोवीन सेलिब्रेट होता है, पूरे एक वीक का प्रोग्राम है, एक दिन Yes, का वो प्रोग्राम अपने ऑफिस में भी रखते हैं, यस मैम। हैलोवीन पार्टी एट वर्क। हेलोवीन पार्टी। ये कल्चर लगती है। फॉरेन का है Why? इंटीग्रेट। Because this is an MNC. Yes. And an MNC के पास बहुत पैसा होता है, इतना पैसा होता है कि किसी एक स्मॉल कंट्री के जीडीपी के बराबर MNC के पास पैसा होता है, तभी Yes, उनके पास इतनी महंगी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है। ठीक है, यस। तो आप ये देखिएगा कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, एक दिन का हैलोवीन पार्टी या फिर वुमेन्स डे सेलिब्रेशन, आप देखा है 8 मार्च को they will make a dress code for the women employees. They'll have like the women employees are requested to come in sarees and they'll make them do a cake cutting and they'll offer them small gifts and all this. ये हमारा कल्चर नहीं था, ये कल्चर बाहर से आया, and since it has become so regular and so natural now that you fail to understand कि हमारा कल्चर है या नहीं है. This is known as the cultural change in human resource. तो जब एलपीजी हुआ तो ग्लोबलाइजेशन के साथ हमारी इकोनॉमी भी इंटीग्रेट हुई, हमारा कल्चर भी इंटीग्रेट हुआ, हमारी टेक्नोलॉजी का भी एक्सचेंज हुआ, हमारे मैन पावर का भी एक्सचेंज हुआ, एंड द एंटायर पैटर्न ऑफ बिजनेस चेंज्ड। एंटायर पैटर्न के जैसे तब हमने देखा कि कंपनीज जॉइंट वेंचर कैसे करती है। समझ में आया? जॉइंट वेंचर मतलब एक दूसरे से जुड़ के कार्य करना। जॉइंट वेंचर कैसे करती है, मर्जर एंड एक्विजिशन कैसे करती है। ठीक है,
मर्जर एंड एक्विजिशन देखने को मिला, जॉइंट वेंचर देखने को मिला। ये जो आज इतना ज्यादा ऑनलाइन ट्रेनिंग का चलन है, आप भी अगर पेमेंट करना चाहते हैं और बाहर से कोई कोर्स सीखना चाहते हैं, इट्स ओपन फॉर यू। अगर हम एज अ टीचर कोई कोर्स करना चाहते हैं जिससे मेरा नॉलेज और ज्यादा डेवलप हो, आई कैन पे एंड आई कैन लर्न, राइट? लेकिन ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं था। तो ये चीजें आपको एलपीजी के बाद जब हमारा फॉरेन कल्चर आया, जब वो लोग इन ऐसी चीजों को, ऐसी टेक्नोलॉजीज को भी लेके आए, देयर वाज अ पैराडाइम चेंज इन द वे वी have been witnessing HR, and now how we are witnessing HR. जैसे जॉइंट वेंचर देखने को मिला, मर्जर्स एंड एक्विजिशन देखने को मिला, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग देखने को मिला। देखिए ये सारा एक एक टॉपिक ना एक एक क्लास का लेक्चर हो सकता है। जैसे कि मर्जर एंड एक्विजिशन का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए जैसे वोडाफोन और आइडिया मर्ज हुए, दो कंपनी मर्ज हुआ ना, मिडिल मैम लेवल, मर्ज मतलब सेम टाइप ऑफ कंपनी जब मर्ज होती है तो उसको मर्जर कहते हैं। मान लीजिए कि वोडाफोन की भी मिडिल मैनेजमेंट में 200 लोग काम कर रहे होंगे, ठीक, मिडिल मैनेजमेंट जो उनका है, जैसे कि जनरली हम मानते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर से लेकर के असिस्टेंट जनरल मैनेजर तक मिडिल मैनेजमेंट में आता है। इतने लोग में 200-250 लोग काम कर रहे होंगे वोडाफोन। मान लीजिए कि इतने ही 250 लोग आइडिया में काम कर रहे होंगे। When they merged, wasn't the manpower surplus? Yes. डबल हो जब वो डबल हो गया। अब दोनों कंपनी Yes. को 500 लोगों की तो जरूरत डेफिनेटली नहीं होगी ना। तो No. क्या यहाँ पे आपको एचआर का एक चेंज पैटर्न यानी रिट्रेंचमेंट देखने को नहीं मिलेगा? Yes. मिलेगा मैम। मिलेगा ना। Yes. इसी Yes, तरीके ma'am. से जब बिजनेस का पैटर्न चेंज होता है तो उसके साथ चीजें अपने आप दे टेक द कोर्स, नेचुरल कोर्स ऑफ चेंज। क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आप सरवाइव नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमको रिट्रेंचमेंट देखने को मिला, हमको ले ऑफ देखने को मिलता है। आज जो बेनिफिट्स में हम आपको पेरोल मैनेजमेंट में बेनिफिट्स का इंपॉर्टेंस पढ़ना है, 3-4 क्लास में बेनिफिट्स समझाए कि क्यों बेनिफिट्स पे इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है आज के जनरेशन में, आज ह्यूमन रिसोर्स में। हम आपको गूगल का भी एग्जांपल लेकर के समझाए थे। अंडरस्टूड? आई टोल्ड यू हाउ दे आर इंक्रीजिंग फैसिलिटीज फॉर विमेन एम्प्लॉइज। क्यों विमेन एम्प्लॉइज के जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि उनकी सेफ्टी, इस पे क्यों ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ की वर्कफोर्स डाइवर्सिटी चेंज हो गई है। You can see so many women working in corporate culture, and these women are equal participation in the productivity of the organization. So it is duty of the organization to keep them happy, to keep them safe, so that they can continue with their service to the organization. ठीक है? उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनका कैब फैसिलिटी, या ये कंसिडर करना कि वो नाइट शिफ्ट में काम नहीं करेंगी, all these things are privilege which are being given as a part of benefit to the women employees. So things have changed this way. When we talk about two different organizations, organization A and organization B, given the same set of factors of production, you can copy the entire factor of production, but you cannot copy the intellectual capital of one organization from another. And this is where the human resource development and maintenance comes into play and becomes so important. समझ में आई ये बात कि क्यों इम्पोर्टेंट है? नेक्स्ट क्लास से हम लोग फॉर्मली, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास था ताकि आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आ जाए। नेक्स्ट Yes. क्लास से हम लोग फॉर्मल क्लास शुरू करेंगे। एचआर वर्कशॉप था, इट विल बी आल्सो एन इंट्रोडक्टरी क्लास बट अ फॉर्मल स्टेप फॉरवर्ड टू आवर कोर्स स्टडी। Okay. Yes. Thank you.